seated. Mental health problems do not define who you are. They are something you experience. Let me make it more clear by giving an example. Just consider that you walk in the rain and you feel the rain. But most importantly, we have to understand that while walking and feeling in the rain, we are not that rain actually. Mental problems are just like that only. With this, a very calm and fresh morning to our distinguished resource person, respected principal sir, vice principal sir, teachers and all the guardians of my lovely students. I, Ankita Singh, feel really honored to host this significant occasion of World Mental Health Week organized by Army Public School, Gorakhpur. I feel really privileged to extend my warm welcome to the resource person of today's session, Dr. Sanjeev Kumar. Sir is a psychiatrist and a social worker as well at Netaji Subhash Chandra Bose District Hospital, Gorakhpur. I welcome you, sir, on the behalf of Army Public School. Now, to make this occasion more happier, I would be glad to request respected principal, sir, and our school councillors to honor our guest by presenting a bunch of flowers. Welcome once again, sir. I hope these flowers will brighten up your day. Moving further, Mental Health Day is celebrated every year on 10th of October. This year too, Mental Health Week is being celebrated, which is starting today onwards, that is 3rd October, and it will last till 10th of October. This day gives an opportunity to the people and communities to unite under the theme, mental health is a universal human right. To improve knowledge, raise awareness and drive actions that promote and protect everyone's mental health as a universal human right. And for the same, our school has also organized numerous programs such as poster making competition, which was held on 27th of September. It was for our school students. We have also organized a stress management session for our teachers, and the guest speaker there was Dr. Anubhuti Dubey, HOD of DDU University, Gorakhpur. And in the same series, today we have organized a parental counseling for the students and parents of classes 9 to 12. We also have with us the parents from Girdharganj Primary School. Sir, Sanjeev sir, I request you without much ado, now I request you to start with today's session because the parents are eagerly waiting to hear you out. There are so many problems they are dealing in today's life and managing with their children. So they are all eagerly waiting to hear you out. So I request you to start with today's session. आई होप आप सबको अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी समझ में आएगी बेहतर। आई नो हमारी मातृभाषा हिंदी है और इसमें हमें कहीं भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हम हिंदी में पले बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हम हिंदी में आपसे बात करें तो बेहतर होगा। और मैं समय अभाव के कारण आज चेयरमैन की विजिट भी है स्कूल में, इसलिए मैं अभी आप लोगों से अनुमति चाहूँगा जाने की। मैं संजीव सर से भी अनुमति चाहूँगा कि मुझे क्षमा करें। वाइस प्रिंसिपल, आई विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ बी विद सर एंड होस्ट हियर। तो वाइस प्रिंसिपल आप लोगों के साथ होंगे और डॉक्टर संजीव साहब को हमने आप लोगों के लिए बुलाया है। किसी भी व्यक्ति को यह समझना
कि उसके दिमाग में कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उसको हम कैसे ले करके ढोते हैं और कैसे वो समस्याएं आगे चल करके गंभीर होती हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने डॉक्टर संजीव से रिक्वेस्ट किया कि सर आप आएँ और हमारे अभिभावकों से रूबरू हों, उनको उनकी समस्याओं से परिचित कराएं और अगर किसी के पास कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी बताएं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर संजीव सर को आप लोग सुने और अगर आपका कोई प्रश्न है तो लास्ट में आपको प्रश्न करने का अवसर मिलेगा, आप अपनी समस्या बता सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बड़ी बनती हैं। एक सपोज 5 ग्राम का कोई सामान है, अगर आपको उसको उठा करके कहीं रखना हो तो शायद आपको कभी लगेगा नहीं कि बोझ है। 10 ग्राम 20 ग्राम या आधा किलो का भी सामान आप उठा करके कहीं भी रख देते हैं, लेकिन अगर उसी 10 ग्राम 20 ग्राम के सामान को हाथ में ले करके और आधे घंटे के लिए हाथ ऐसे करके खड़े करना हो तो आपको समझ में आएगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है। वही सेम चीज हमारे दिमाग की प्रॉब्लम्स है। जो हमारे दिमाग में छोटी छोटी समस्याएं चल रही होती ना, बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया आपको लग गया, कभी बच्चे ने ही आपको कुछ कह दिया आपको लग गया कि बताओ मेरा बच्चा मुझसे ऐसे कहता है, कभी हस्बैंड ने कुछ कह दिया, कभी सास ससुर ने कुछ कह दिया, और उन छोटी छोटी बातों को आप जो दिमाग में ले करके चलते हैं वही आगे चल करके बड़ी बड़ी समस्याएं बनती हैं। तो उनको कैसे निकालना है, कैसे उनको मैनेज करना है और कैसे अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करना है, इन्हीं संदर्भों पर मैं अनुरोध करूंगा कि संजीव सर आप लोगों से बात करेंगे। बीच में इंटरप्ट करने के लिए मैं पुनः एक बार आप सबसे क्षमा चाहता हूं और अनुमति चाहता हूं कि चेयरमैन की विजिट है, मैं वहां थोड़ा बिजी हूं। जैसे ही फ्री होऊंगा, और हो सकता है चेयरमैन भी आप लोगों से रूबरू हो, अगर उनको समय मिलता है तो मैं चेयरमैन को भी आप लोगों के बीच में लेकर के आने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल सर, मैम, हमारे बीच उपस्थित। सर आवाज़ आ रही है? ओके। जानबूझ के मैंने कोल्डलेस माइक लिया ताकि ये जो सेक्शन है आज का, ये मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसमें इतनी सारी जानकारियाँ होती हैं, इतनी सारी नॉलेज होती है, और वो धीरे धीरे नॉलेज क्या करता है, सामने वाले को बोर करने लग जाता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि हम लोग ये जो सेशन है इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकें, और जो भी हमारा पर्पस है, मोटिव है, इस वीक का जो मोटिव है, इस मंथ का जो मोटिव है, जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और जो WHO का थीम है वो अभी बताया कि मेंटल हेल्थ सबके लिए राइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 भी पास किया है, और उसके तहत भी ये चीज़ें लिखी गई हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मेंटल हेल्थ एक राइट है। आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड पे लोग घूमते हुए नज़र आते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में, हम और आपकी भाषा में, हमारे समाज की भाषा में पागल कहते हैं। बेसिकली वो साइकोसिस, शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, जिसके कुछ लक्षण, सिम्टम्स देख के आप लोगों को समझ में आता है कि वो पूरी तरीके से पागल है। यानी कि उसके ब्रेन पे, उसके दिमाग पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो किसी को भी पत्थर उठा के मार देता है, किसी को भी गाली दे रहा है, उसका क्या ऑनसेट है उसको नहीं पता है। उसने कुछ किसी भी तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उसने मैले कुचैले गंदे कपड़े पहने भी हैं तो भी ठीक, नहीं पहने हैं तो भी ठीक। मतलब ये जो
लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है सेल्फ को लेके, ये एक शिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है। उसके अंतर्गत ऐसे लोग और ऐसी बीमारियां आती हैं। ठीक है, सो वी आर हियर टुडे टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड आई विल ट्राई टू convey my all information related to mental health with both language Hindi and English. ओके, ताकि सब लोग अच्छे से सुन सके, समझ सके, प्रेपर हो। मेरा साथ जो देंगे आज मेरे साथी श्री विष्णु कुमार शर्मा जी भी हैं साथ में, जो कि मेरे ही डिपार्टमेंट से हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। यहाँ से ठीक लग रहा है या मैं नीचे ही आके बात करूं, जब वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा? यहाँ ठीक है, ओके। सो जो एक औपचारिक शुरुआत है तो उसके बारे में बात करते हैं, और मैं जानने की भी कोशिश करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि आप लोगों का क्या नज़रिया है, या आप लोग क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं। आप लोगों में से अगर कोई बताए कि क्या होता है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, जो भी लक्षण आप लोगों को समझ में आए, अपने को लेके, घर परिवार के किसी सदस्य को लेके, बच्चों को लेके, या आपने जो भी देखा सुना समझा है समाज में, उसको लेकर आपको क्या समझ में आता है कि क्या है मानसिक स्वास्थ्य। कोई भी बताना चाहे, सही गलत पार्टिसिपेट तो करिए, कुछ भी हो सकता है। प्लीज कोई भी बताए। नमस्ते सर, मैं नमस्ते। शिक्षक यहाँ पे नीतीश तिवारी। जैसा कि अभी आपका प्रश्न था कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम हर समय हमारा मन सुख से भरा हुआ है, खुश है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है। और हम यदि हमेशा चिंता से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, ऐसी परेशानी से परेशान है जो वास्तव में परेशानी है ही नहीं, अपने बच्चे की परेशानी से परेशान है, अपने माता पिता की परेशानी से परेशान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से वो व्यक्ति ग्रसित है। मतलब मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति हम उसको बोलेंगे जो समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती ब्रह्मांड में, और उस समस्या से वो ग्रसित है। जैसे कि कल यदि मुझे साइकिल से जानी है और मेरा साइकिल एग्जाम है कल और मेरी साइकिल खराब हो जाए, तो मुझे लगता है ये मानसिक डिसऑर्डर है, इसको हम मानसिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो मेरे मायने में ये चीज़ें, और बाकी मन के विषय में यदि अध्ययन कर बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग उस पर जब सेशन आगे बढ़ेगा तो बात करते हैं। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बताया सर, के लिए मैं चाहूँगा क्लैपिंग कर लें आपको। सर ने बेसिकली बात की है स्ट्रेस की, एंजाइटी की। एक अननोन फेयर होता है एंजाइटी में, स्ट्रेस में, जिसमें फीलिंग में होता है इंसान, जिसको हम लोग पैनिक अटैक से भी जोड़ सकते हैं। पैनिक अटैक एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि स्ट्रेस में आता है, जिसका होलिस्टिक या अम्ब्रेला टर्म कहें तो वो स्ट्रेस में जाएगा। पैनिक अटैक में यही होता है कि हम कोई भी काम, पहली बात तो कि हम कोई काम शुरू करने के लिए सोच ही नहीं पाएंगे, नया काम। और अगर हम कोशिश करते हैं किसी नए काम को शुरुआत करने के लिए, तो होता क्या है, उसमें इतना ज़्यादा फेयर ऑफ फेलियर का इतना ज़्यादा डर रहता है कि हम कुछ नए काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते, शुरुआत नहीं कर सकते। और क्या होगा, कुछ टास्क है, कोई काम है, बच्चों का एग्ज़ाम है, आपके घर में कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, कोई कथा पूजा, कुछ भी इवेंट है घर का, तो आपको उससे पहले कुछ घबराहट होगी, स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में होंगे। और कभी कभी आपको वो एंजाइटी स्ट्रेस क्या होता है, हैंडल हो जाती है, बट कभी कभी ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एक अटैकिंग फॉर्म में हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पैनिक अटैक, जिसमें पल्पिटेशन होता है, यानी बॉडी शेकिंग होगा, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे,
आपको इतना ज़्यादा उसमें फेलियर का डर लगेगा कि आप उस काम को शुरू करने के लिए सोचेंगे और शुरू करने जाएंगे तो आप उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसका फेलियर इतना ज़्यादा डराने लगेगा कि आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। यह है पैनिक अटैक। स्वेटिंग होती है, चेहरे पे हथेलियों में आपके पसीना आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी अभी जान निकल जाएगी, सांस रुक जाएगी, धड़कन रुक जाएगी, ऐसा लगता है वो जो उनकी लैंग्वेज में देसी लैंग्वेज में कहते हैं मेरा कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा लगता है। जो लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को या मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को देखते हैं, जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो सिर्फ जिनको अभी शायद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के पेशेंट के बारे में थोड़ा सा भी वास्तविक उनके बारे में जानकारी नहीं है कि वो किस नर्क में रहते हैं, है ना, मैंने एक शब्द यूज किया नर्क, वो नर्क में रहते हैं। हमारा और आपका जो शरीर है, देख हम पहन ओढ़ के आते हैं, दिखते हैं, साफ सुथरे होके आते हैं, दिख रहा है। लेकिन सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो सुसाइडल टेंडेंसी हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो पैनिक अटैक हो, अगर वो इस तरह के किसी डिसऑर्डर में है तो उसका जीवन किसी नर्क से बदतर है। क्योंकि वो आप और हम तो बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक दायरे में देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि मेरे सामने क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेंटल सिक है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो उसको एहसास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे पेंडुलम की घड़ी होती है ना, इधर गए और इधर गए, वो उसी तरीके से अपने थॉट से, अपने विचारों से संघर्ष कर रहा होता है, लड़ रहा होता है अपने विचारों से बाहर आने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए, उस अंतर्द्वंद से बाहर आने के लिए जो उसके दिमाग में चल रहा है। और वो कुछ भी छोटी सी बात हो सकती है, वो छोटी सी बात इवन ये हो सकती है कि सामने वाले ने मुझे नहीं देखा ध्यान से। पता है क्या स्टेटस है मेंटल डिसऑर्डर का? अगर यहाँ पे बैठे किसी महिला ने और किसी को अगर यहाँ इशू है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, या पैनिक अटैक में है, वो डिप्रेशन की सीवियर कंडीशन में है, वो थर्ड फॉर्म में है वो, और किसी ने यहाँ पे उसको ऐसे देखा, घूर के देखा, या उसको तवज्जो ही नहीं दिया, तो उसके लिए पूरे दिन का काम हो गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा कि सामने वाले ने मुझे नहीं देखा, यानी मैं अच्छा नहीं दिख रहा या अच्छा नहीं दिख रही, मुझ में शायद कोई कमी है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि जो यहाँ पे पेरेंट्स और गार्जियन बैठे हैं, ये क्लास 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के पेरेंट्स हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स का यानी मानसिक बीमारियों का जो एक बेस है, वो जो आपके बच्चों के एज ग्रुप है उसी में ही शुरू होता है। मतलब अगर किसी को 30 साल में, 32 साल में, 35, 40, 50, 60 में, अभी हम बात करेंगे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे क्या क्या डिसऑर्डर है, कैसे कैसे डिसऑर्डर है, क्यों होता है उसी एज ग्रुप में, सारी बातें करेंगे। और आपके जितने भी प्रश्न होंगे मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा और आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो बेझिझक फ्रीली माइंड होके बैठिए, समय लेके बैठिए, क्योंकि आज आप अपने लिए भी आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए आए हैं। तो ये पहले तो इस बात के लिए मैं आप लोगों के लिए, खुद के लिए क्लैपिंग करवाना चाहूँगा, और आप अपने लिए क्लैपिंग करिए कि आप अपने बच्चों को लेके इतने कॉन्शियस हैं आज के, क्योंकि आज के आप पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, है ना, और एक मैनेजमेंट के साथ आप लोग चलते हैं। तो जो इस एज ग्रुप में कुछ एक डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में, टीनेज में, है ना, किशोरावस्था में ज़्यादा होते हैं। और फिर हम बात करेंगे आप लोगों पर भी कि आप लोग अपने बच्चों से क्या चाहते हैं और आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है।
और फिर उस समय में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो एक अंतर्द्वंद होता है माँ पिता और बच्चों के बीच में, उससे कैसे निपटा जाए, या वो क्यों है कॉन्फ्लिक्ट, इस एज ग्रुप में क्यों हो जाता है ज़्यादा, इन सब पर बात करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे, काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डिप्रेशन पर। डिप्रेशन के बारे में सबने सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने, है ना, डिप्रेशन। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी सुना आज उनको क्लियर हो जाएगा कि डिप्रेशन है क्या, क्योंकि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सबको एक मिला देते हैं, जबकि जो हाँ बिल्कुल, अगर कुछ लोगों ने हैकअप किए थे, अगर वो लोग बताना चाहें कि डिप्रेशन के कुछ एक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं बेझिझक, और फ्रीली होकर आप पार्टिसिपेट करिए, है ना, गलत होंगे तो मैं हूँ ना यहाँ पे, है ना, आप फ्रीली होकर पार्टिसिपेट करिए। बिल्कुल, जैसे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उसी में जीने लगते हैं, और किसी की बात कुछ भी अपना जो इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में बार बार सोचना, फिर सोचते सोचते क्या होता है कि नींद नहीं आती है, फिर जैसे कुछ भी माहौल अपना क्रिएट है, बहुत अच्छा माहौल है मगर हमारा दिमाग हमेशा वहीं पे रहता है, वहीं पे रहता है। कई बार क्या होता है कि अपने हम डिप्रेशन किसी चीज़ को देखना, उसको देख के हमें किसी भी चीज़ होता उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो डिप्रेशन इसलिए होता है कि हम अपने दिमाग को कहीं अलग लेके जाते हैं, अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को उसी के मतलब दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो डिप्रेशन आपसे धीरे धीरे अपनी लाइफ का एक पार्ट, एक टाइम खुद ही सबको देता रहता है, तो वही डिप्रेशन है, और जिसका पूरे परिवार पे, पूरे घर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, उनके लिए ताली बजा दीजिए। इन्होंने बताया यानी स्टक हो जाना, रुक जाना कहीं पर, आपको वो विचार, वो थॉट, वो एक कमी आपको पूरे दिन के लिए वहाँ पर स्टक कर देगी, रोक देगी, चिपका देगी उस बिंदु से, और वो कहीं आपको हिलने नहीं देगा, वो आपको पूरा दिन कुरेदता रहेगी वो बात। और धीरे धीरे करके, जैसा बताया मैम ने, कि धीरे धीरे करके आपको नींद भी यानी स्लीप डिसऑर्डर भी होने लगेगा। आपकी जो एक प्रॉपर स्लीप का 7 to 8 आवर का हम लोग का ड्यूरेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं भरपूर नींद लेना, ताकि भरपूर नींद लेने से हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों मेंटेन रहता है। जैसे कि क्या होता है, हमारा मोबाइल होता है ना, डिस्चार्ज होता है, हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी उसकी, और फिर से वो काम करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से हमारा नींद, हमारा रेस्ट हमको वापस अगले दिन के लिए रिचार्ज करता है, चार्ज करता है, ताकि हम आगे के सारे काम हम वापस अपनी एनर्जी में वापस आ सकें। और आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि अरे हम फला साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, उन्होंने तो बस नींद की दवा दी, सो रहे हैं, सो रहे हैं। ये भ्रांति बहुत ज़्यादा बैठी हुई है हमारे समाज में, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, कई सारे सॉल्ट होते हैं जो मिला के दिए जाते हैं, और उस समय में पेशेंट का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो सोएगा नहीं तो वो रिकवर नहीं करेगा जल्दी से। तो इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम लोग डिप्रेशन पे बात कर रहे थे। मैम ने एक अच्छा सिम्टम बताया, अच्छा लक्षण बताया। मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, और आज आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि डिप्रेशन आखिरकार है क्या। डिप्रेशन को हम लोग अवसाद या उदासी का रोग भी कहते हैं, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। और संभावना कितनी है, किसी भी व्यक्ति को 50 to 70% पूरे जीवन काल में, उनके लाइफ सर्किल में होने के चांसेस हैं। 50 to 70% की वो लाइफ में डिप्रेशन में एक बार जा सकता है। तो ये रियली में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित बीमारी है, प्रचलित विकार है, डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हमको जानना ही होगा। WHO आप लोग सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ये कहना था कि 2020 में 15 to 20% मेंटल डिसऑर्डर में इतना ज़्यादा बूम आएगा कि उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। बट हुआ क्या, कोविड लगे हाथ साथ में आ गया, और कोविड के चलते ये जो आंकड़ा है ना, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। और
आप लोगों को एक लिफलेट, एक पर्चा मिला हुआ है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स लिखे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। और जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक विकार पे जो मैम ने के थ्रू ये सेशन रखा जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं और हो रहा है, सिर्फ इस पर बातें हो रही हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और इसकी इम्पोर्टेंस ये आंकड़े आपको बताएंगे। जो मैंने कहा ना 15 से 20%, अगर टोटल पॉपुलेशन का 15 से 20% जनसंख्या अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में चली जाएगी ना, तो उसको हैंडल करना रैली में बड़ा मुश्किल होगा। कोई छोटा आंकड़ा नहीं है 15 से 20% वर्ल्ड वाइड। चीज़ें और आगे क्लियर होंगी, पता चलेंगी क्या है। उदासी का रोग यानी डिप्रेशन, अवसाद। इसमें सबसे पहले इस डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए जो डायग्नोस बनती है, उसमें 3 चीज़ें हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा फाइंड आउट करते हैं पहले। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हर एज ग्रुप में हो जाता है, और जो 10-12 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। उसके पीछे कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ बायोलॉजिकल, कई तरह के एस्पेक्ट हैं जो काम करते हैं। उस पर भी और अभी क्लियरली बात करेंगे। तो जो ये डिप्रेशन है, इसके पीछे या जो हम लोगों की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, जो हम लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी स्कूल्स में डिप्रेशन पे बात करने के लिए, सुसाइडल टेंडेंसी पे बात करने के लिए हम तक कई पत्र और कई पत्राचार भी भेजते हैं हम लोगों के विभाग में, कि हम लोग आए यहाँ पर और इस तरीके से सेशन करें, लोगों को बताएं, क्योंकि इतना लैक ऑफ अवेयरनेस है सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ को लेके। मैं बात किसी और की नहीं कर रहा हूँ, हम उनको तो छोड़ दें। अभी जो ग्रामीण परिसर में रहने वाले लोग हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो तो उनकी तो बात ही मत करिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ हम लोग जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उन तक अभी ये सब चीज़ें नहीं पता है कि क्या है मेंटल डिसऑर्डर। अभी मैं बात करूँगा कुछ ऐसे एक डिसऑर्डर की, जैसे OCD वगैरह हो गया। आप इसके जब लक्षणों को जानेंगे तो आप बड़े विचलित होंगे। और लेकिन ये इतनी खतरनाक बीमारी है जो कि छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी आदतें आपको जब पता चलेगी इसकी, और जीवन इतना नर्क हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। OCD बात करेंगे उस पर भी। पहले हम बात करें डिप्रेशन पर। डिप्रेशन उदासी का रोग है। इसमें 3 कोर सिम्टम होते हैं, यानी मुख्य लक्षण, जिसपे हम सबसे पहले वॉच करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहले तो उदासी। अगर किसी व्यक्ति में मीन्स कोई भी हो सकता है, वो बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, पुरुष, महिला, टीनेज, वृद्ध, जवान, एडल्ट, कोई भी हो सकता है, सबके लिए है। डिप्रेशन में सबसे पहला अगर उदासी, अगर किसी की उदासी 2 सप्ताह से ज़्यादा, मोर देन 14 डेज अगर बनी रहती है एज इट इज, तब हम कह सकते हैं कि समवन गोइंग इन डिप्रेशन। सेकंड इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी अरुचि। अरुचि को हम ऐसे समझ सकते हैं, जिन चीज़ों में किसी व्यक्ति का पहले बहुत ज़्यादा मन लगता था, जिन चीज़ों में आनंद आता था, उनको उन कामों को करने में बड़ा मज़ा आता था, अब क्या है, उन कामों को करने में उन्हें बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। नहीं, वो जिसके प्रति उनका रुझान था, वो रुझान धीरे धीरे करके टूट के खत्म हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, वो खाना बनाना हो सकता है, टीचिंग करना हो सकता है, कविताएं लिखना हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, कोई गेम खेलना हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें उनको, मेंटल एक्टिविटी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन अब उसको करने का एकदम मन नहीं करता है। तीसरा है फटीग। फटीग बोले तो लैक ऑफ एनर्जी। इतना ज़्यादा थकान, इतना ज़्यादा थका हुआ अपने आप को महसूस करेंगे कि लगेगा कि बस बिस्तर पे लेटे रहे और हमारे सारे काम यहीं से हो जाए, यहीं पे खाना मिल जाए, यहीं पे पानी मिल जाए, यहीं पर ही सारी चीज़ें हमारी हो जाए। छोटे छोटे काम करने के लिए, मान के चलिए संडे है, आप लेटे हुए हैं, आपको मौका भी है थोड़ी देर तक बिस्तर पे सोने का, है ना। हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं और फिर धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं, ये होता है कि मेरे कुछ पेंडिंग वर्क है उनको कर लिया जाए। तो क्या करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि चलो
कुछ कपड़े हैं उनको धो लें, कुछ पेंडिंग वर्क है, कुछ डॉक्यूमेंटल वर्क है उसको कर लें, और उसको जिसको डिप्रेशन में जो जा रहा है या डिप्रेशन में है वो अपने आप को मोटिवेट करता रहेगा। एक और ये मोटिवेशन 1 घंटा हुआ, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और कई घंटों निकाल देगा वो छोटे से काम को करने में, लेकिन वो काम तभी नहीं कर पाएगा क्योंकि उस काम को करने में उसको बड़ा कुछ अननोन सा फियर, एक भय सा लगेगा, डर सा लगेगा। ठीक है, तो ये 3 कोर सिम्टम है, मैं रिपीट कर देता हूं। सैडनेस more than 40 days, lack of interest, and third one is fatigue, lack of energy। ये 3 कोर सिम्टम है। एडिशनल सिम्टम क्या है? नींद ना आना, देर से नींद आना, नींद आने में समस्या, या अत्यधिक नींद आना, बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दिया, ऐसा कि बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं बिस्तर छोड़ने का मन करता है? क्योंकि उसको अननोन फियर है, एक डर है उसके अंदर, वो कुछ काम को करने की उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है, वो किसी काम को करने की शुरुआत ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, साथ ही क्या है एडिशनल सिम्टम्स और क्या है? जैसा बताया कि नींद ना आना और उदासी में बहुत ज्यादा चले जाना। हाँ, लोनलीनेस, अकेला रहना पसंद करेंगे ऐसे व्यक्ति, बंद कमरे में। जिन दोस्तों के साथ पहले घंटों बीतता था, अब उन दोस्तों से दूरी अपनाना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे करके पता है ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होने लगता है? ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन तो एकदम खोखला हो गया है। छोटी छोटी समस्याएं उसको बड़ी पहाड़ लगी, जो हम और आपको शायद यूं चुटकियों में हल कर लें, उसको लगेगा कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूंगा या निकलूंगी। और ऐसे जीवन के साथ क्या कोई जी पाएगा जो कि छोटी छोटी समस्याएं उसको ऐसा लगती हैं कि उसके जीवन से वो समस्याएं कभी नहीं जाएंगी, लाइफ लॉन्ग उसके साथ जुड़ी रहेंगी। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके जब इस तरह की लक्षणों के साथ कोई व्यक्ति रहना शुरू कर देता है तो उसके मन में क्या ख्याल आएगा? क्या ख्याल आएगा? आत्महत्या करने का ख्याल आएगा, सुसाइड करने का ख्याल आएगा। और हम लोग आत्महत्या के बारे में, सुसाइड के बारे में ऐसे खुल के बात कर सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। सुसाइडल टेंडेंसी मैंने क्यों जोड़ा दोनों को एक साथ? डिप्रेशन के जस्ट बाद ही सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, आत्महत्या करने के विचार आने लगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वो उसको धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में कोई रस नहीं है, निराशा, अंधकार से भरा है उसका जीवन, और वो उससे कभी वापस नहीं आ पाएगा। और आप लोगों ने सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा, अगर व्यक्ति ये कहने लगे कि मेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा है, मेरा मन नहीं करता कि मैं जीऊं, तो ये मेंटल हेल्थ में, इसको हम लोग मेंटल हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो आप तुरंत उसको नियर बाई किसी भी मेंटल हेल्थ क्लिनिक पे, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास, या जो भी नियर बाई आपके अस्पताल है वहाँ भेजिए उसको। या इसके लिए फर्स्ट एड आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति से बात करिए। और जिनको सुसाइडल टेंडेंसी होती है, सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, उनको ये भी लगता है, पता वो इतने ज़्यादा निराश होते हैं ना, उनको ये महसूस होता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। वो लगता है कि वो समाज में कुछ है ही नहीं, एकदम नेग्लेक्टिंग अपने आप को वो महसूस करता है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर कोई आपको लगता है कि कोई सुसाइडल टेंडेंसी पे जा रहा है, तो आप बस उससे बात करिए, आप उससे पूछिए क्या हाल है, क्या हो गया, ऐसी भी क्या बात हो गई कि सोच रहे हो कि आत्महत्या करने के बारे में, तो बताना शुरू करेगा। आप सुनिए, बस आप उसको बैठ के पेशेंसली सुनिए और उसकी कुछ बातों को गंभीरता से लीजिए, तो उसको एहसास होगा नहीं, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो मुझे सुन सकता है, मुझे समझ सकता है। और सिर्फ इतना करने से आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें
अगर आपके सामने से गुजरी हैं तब तो बहुत बड़ी लगेंगी, लेकिन अगर आपके सामने से नहीं गुजरी है तो आपको रियली में काफ़ी छोटी और माइक्रो सी लगेंगी, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली फिट हैं, लेकिन जिनके साथ जो मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल है, मेंटली थोड़ा सा अनफिट है, या प्योरली वो किसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ मैंने कहा ना पहाड़ जैसी नज़र आएगी। क्योंकि हम सब इस समाज के हिस्से हैं और हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग का भी कहीं ना कहीं ये दायित्व बनता है कि मेरा साथी, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरे परिवार का कोई और सदस्य अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और ये मदद सिर्फ बात करने से ही सॉल्व हो जाएगी कुछ समय के लिए। जब आप उसको ये फर्स्ट एड अप्लाई करके उसकी बातों को सुन के उसको रिस्पॉन्स कर देंगे, तो जो उसने अपना मूड बनाया है, उसने जो संकल्प लिया है कि मैं आज जाके आत्महत्या कर लूँगा कैसे भी, चाहे लटक कर, चाहे कहीं से कूद कर, चाहे करंट से, तो वो कुछ टाइम के लिए उसको ड्रॉप कर देगा उन आइडियाज को, और आप डेफिनेटली किसी की जान बचाएंगे। और जान बचाना रैली में अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है ना सर? राइडर थोड़ा सा ऐड करूँ? हाँ, जैसा कि सर आप लोगों को बता रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, और ये भी बात हुई कि आप पेरेंट्स हैं, आपको बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ सर। कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान अगर किसी भी बात से सदमे में जाता है, कोई भी आघात, उसको मानसिक आघात अगर लगता है, दिमाग पे ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है जिसको वो उस समय बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो जैसे हमें कोई इन्फेक्शन होता है शरीर में, तो हमारे शरीर में क्या होता है, बुखार होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है, ऐसे ही हमारे मानसिक अगर कोई आघात लगता है तो हमारे कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो सामने आते, रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कोई एक दिन का केस होता ही नहीं है डिप्रेशन, सबसे पहले तो बच्चा बड़ा कोई भी इस बात से जब जूझता है तो वो पहले चाहता है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, उसका व्यवहार वो कह नहीं पाता है, जिस बात से गुजर रहा होता है सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो उसको एडमिट नहीं कर पाता, वो कह नहीं पाता है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन वो अपने व्यवहार से चाहता है कि आप उसकी तकलीफ को समझें। वो पहले पूरी कोशिश करता है आप पर गुस्सा करके, ब्रश ना करके, नहाने नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, ऐसे बहुत सारे व्यवहार करेंगे, आई थिंक राइट, ऐसे बहुत सारा व्यवहार करेगा जिससे आपको लगेगा कि ये आजकल बहुत बदतमीज हो गया, लग रहा है बुरी संगत में है, इसकी आदतें खराब हो गई हैं, शायद मोबाइल ज़्यादा देख रहा है, कहीं से कुछ सीख लिया है, सब सही है। लेकिन जैसा सर ने कहा कि 2 सप्ताह तक अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो 2 सप्ताह तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा जिस उम्र में है वो बड़ा ही खतरनाक उम्र है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से परिवर्तन चल रहा है, सामाजिक रूप से परिवर्तन चल रहा है, और उसका जो व्यवहारिक चीज़ है उन सब के बीच वो जूझ रहा है। तो ऐसे में जैसे कहते हैं ना कि शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए, सुना है आप लोगों ने? शायद इसलिए कहते होंगे कि एक सीजन से जब एक टेम्परेचर से दूसरा टेम्परेचर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो शायद हमारा बॉडी जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा कोई भी ऐसा व्यवहार कर रहा है जो पहले नहीं करता था, तो आपको थोड़ा सा ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा कर क्यों रहा है, बशर्ते कि आप ये सोचें कि ये बदतमीज़ हो गया है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे जरूर डालना चाहूँगी कि अगर बच्चा 1 हफ्ते तक आपकी बात नहीं सुनता है, आप लोग यही सोचते हैं कि इसको कुछ हो गया है मतलब वो वाला नहीं कि आप जाके काउंसलर से बात करें, आप जाके टीचर से बात करें, आप जाके किसी डॉक्टर से बात करें, वो वाला बात आप नहीं करते हैं। आप वो रिसोर्स ढूंढते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। आप किसी बाबा के पास जाते हैं, आप किसी जादू टोना के चक्कर में पड़ते हैं, और पूरी गारंटी के साथ हमको भी बताते हैं कि मैम कुछ नहीं है, ऐसा है, वो ठीक हो जाएगा। ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप इन लक्षणों को समझें। अगर आपका बच्चा स्कूल आना छोड़ रहा है, ब्रश करना छोड़ रहा है, नहाना छोड़ रहा है, अपने आप को बेतरतीबी से रख रहा है, खाना नहीं खाना चाह रहा है, आपके साथ गुस्सा कर रहा है, टेंशन शो कर रहा है,
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चाह रहा है कि आप उससे ज़रा पूछिए कि क्या हुआ है, पर हम लोग पूछते नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से ज़्यादातर पेरेंट्स एग्री करेंगे कि आप पूछते नहीं हैं। हम कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो जब हम कह देते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मैं अपनी परेशानी इनको कैसे बताऊं, इनको तो मेरा जो व्यवहार है अभी वही नहीं समझ में आ रहा है, और वो फिर हमारा और उसका दूरी बढ़ना शुरू हो जाता है। और क्यों वो कर रहा है? क्योंकि वो तो कंट्रोल, उसके थॉट्स कंट्रोल में नहीं है, उसको जो मानसिक आघात लगा है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और आपसे कहना चाह नहीं पा रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके से उसको कंफर्ट फील कराएं, चाहे वो जितनी भी बदतमीजी कर रहा हो। एक पल को हमेशा, एक कोई तो टाइम होगा जब वो ठीक रहता होगा, आप जरा बैठाइए और पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एक बार, दो बार जरूर बच्चा आपसे कुछ ना कुछ कहेगा, और उस समय बजाय उसको समझाने के आप सिर्फ सुनने की कोशिश करिएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम का इंतजार करिएगा कि अब मैं दोबारा इससे कब बात कर पा रहा हूँ और क्या और कहने वाला है। तो ये अवेयरनेस आप सभी को यहाँ पे लेने की जरूरत है, जितनी बातें यहाँ पे हो रही हैं। थैंक यू। हेलो, मैम ने सोशली बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दिया आप लोगों को कि क्या क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अभी बताया भी कि स्टिग्मा हमारे समाज में आज भी, और मैम ने अभी बताया, मुझे भी जानने को मिला कि अभी स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स भी अभी ऐसी बात कर रहे हैं। मैं इसके आगे की बातें बता रहा था दरअसल, लेकिन है, शायद है, अभी है, हम लोगों के बीच में है, हमारे समाज में है आज भी। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया था, साइकोसिस, शिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर में हेलुसिनेशन बनते हैं, ऑडियो विजुअल। हेलुसिनेशन बोले तो भी और क्लियर हो जाएगा आपको। डेलूजन बनते हैं, हेलुसिनेशन बनते हैं। डेलूजन तो आप आसानी से समझ पाएंगे। डेलूजन मीन्स ये कि जैसे यहाँ रस्सी पड़ी हो और आप उसको सांप समझ रहे हो, है ना। जो शिजोफ्रेनिक है वो उसको सांप समझ लेगा और उससे डरेगा, उससे भागेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। हेलुसिनेशन में भी क्या होता है कि कई बार ऐसे लोग, आपको और हमको बहुत बाद में पता चलता है कि ये कोई बीमारी है, ना कि कोई झाड़ फूक, कोई ऊपरी चक्कर, जादू, पिशाच, जिन, ये सब चीज़ें नहीं है और होती नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो काम करता है। आज की टॉक से हो सकता है थोड़ा सा फर्क पड़े, पूरा नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा सा हो सकता है फर्क पड़े, पूरी तरीके से नहीं आप छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग, जो 30 साल, 25 साल, 40 साल की एक जो मेमोरी आप लोगों ने बनाई है, जो मिली है पीछे से हम लोगों को, हमारे पिछली जनरेशन से, वो इतनी जल्दी नहीं एक दिन की टॉक से चली जाएगी, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उस परत को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करूँ, उस मिट्टी को, उस धूल को जो एक अंधविश्वास की चढ़ी हुई है हम सबके ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि हेलुसिनेशन क्या है, किसी की कानों में आवाज़ आती है, उसके कानों में आवाज़ आ रही है कि जाओ सामने वाले को थप्पड़ मार दो, जाओ ऊँटा उठा के मार दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इसलिए वो कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पीछे मैंने बताया ना, शिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, हेलुसिनेशन बन रहा है, उसको ऑडिटरी एक होता है, ऑडियो, उसके कान में आवाज़ आ रही है। दूसरा हेलुसिनेशन यानी दिखाई देना, विजुअल हो रहा है उसको, उसके सामने कोई खड़ा है, यहाँ किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ सामने कोई खड़ा है और उससे बातें हो रही हैं। अभी तो भैया शायद भगवान से बात कर रहा है, शायद देवी देवता से बात कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। हम लोग कई नज़रिया है ना देखने में, और बड़े वाले बाबा के पास चलना है इस बार दिखाने के लिए इनको, क्योंकि ये तो सीधा भगवान ही उतर आए हैं इनमें, या कोई बहुत बड़ा भूत प्रेत जिन पिशाच चिपक गया है इनको। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 10 साल का बच्चा जिसने अपनी पर्सनैलिटी को इतना चेंज कर दिया सिर्फ हम लोग की करतूत के कारण।
क्योंकि हम लोगों की दिमाग में घुसा हुआ है और वही हम अपने आगे आने वाले बच्चों को भी दे रहे हैं। दो मैं नाम लेना हम लोगों को अलाउ नहीं होता है, दोनों, एक मेल है एक फीमेल, एक बॉय है एक गर्ल है। दो केस ऐसे हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ। एक कहता है कि मैं जिन हूँ, मैं वो नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा चीज़ें देखी, उनके माँ बाप के साथ कुछ रहा होगा तो बच्चे को भी साथ में ले जाके कि चलो उनको भी आशीर्वाद दिला देंगे बाबा से। अब वहाँ पे क्या माहौल होता है आप लोग समझते हैं। कोई खेल रहा है, किसी ने बाल खोल रखा है, कोई हाथ पैर पटक रहा है, कोई लौट रहा है और बाबा वहाँ किसी को मार रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। ऐसा मतलब माहौल बना होता है। अब उस छोटे बच्चे पे 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रेन पे? अगले दिन से वो भी कहा, अरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, अरे मुझे भी दिखने लगा है। बहाने हैं उसके पास कि वो ताकि उसको पढ़ना ना पड़े, ताकि उसको क्या कुछ ना करना पड़े। और ऐसा कर करके वो धीरे धीरे करके वो पर्सनैलिटी बना लेता है अपनी। और जब एक बार पर्सनैलिटी वो बना ली उसने कि मेरे ऊपर तो वो है, मेरे ऊपर तो, अरे बातें भी ऐसी होती हैं, अरे वो मरी थी ना, वही आती है उनके ऊपर, रात में वही देखी थी। बेचारा बच्चा बाथरूम तक जाने में घबराता है कि नहीं मैं तो अकेले नहीं जाना है। मैं इसके काफ़ी ऊपर की बातें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा एक कदम जंप कर गया। मुझे यहीं से ही चलना चाहिए था। मैम ने वापस मुझे कम बैक किया, ठीक किया ये। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे हैं, जिसको मैंने साइंटिफिकली कनेक्ट किया कि हेलुसिनेशन बनते हैं। एक होता है कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, और एक बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, जिसमें दो तरीके के हैं। एक तो एपिलेप्सी भी है, जिसको हम लोग मिर्गी का रोग कहते हैं। दूसरा क्या होता है, इतना ज़्यादा हम लोग जब स्ट्रेस से लोडेड होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी में होते हैं, तो क्या होता है हम लोगों को वैसे भी उस स्ट्रेस से बचने के लिए, और ये महिलाओं में ज़्यादा होता है क्योंकि घर में कभी किसी सास से नहीं बन रही है, कभी देवरानी से नहीं बन रही है, कभी जेठानी से नहीं बन रही है, पति नहीं सुन रहा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चे ने परेशान कर रखा है, पूरा दिन स्ट्रेस में डूबी है बेचारी, और उस तनाव को नहीं झेल पा रही है वो। और उस तनाव को नहीं झेल पाने के कारण उसके अंदर धीरे धीरे क्या होने लगता है, उस तनाव से बचने के लिए बेहोश होकर वो गिर जाएगी, कभी जानबूझ के, कभी अनजाने में। मेरे पास काउंसलिंग के कई सारे ऐसे केसेस आते हैं, और सिर्फ उस समय से बचने के लिए, उस स्थिति से बचने के लिए धीरे धीरे करके ये प्रोपोगेंडा उनकी मजबूरी बन जाता है। ये प्रोपोगेंडा अपनाना पड़ता है, ये तरीका अपनाना पड़ता है? तो ये सब चीज़ें भी हैं, पढ़े हम लोगों ने, साइंटिफिकली चीज़ें हैं ये, ठीक है? ये हो गया। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे भी काम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने अंधविश्वास को तोड़ने की। अभी भी अंधविश्वास ये है कि अगर किसी के यहाँ कोई MR यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, पहले मेंटल डिसेबिलिटी कहते थे, है ना? अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड कहते थे पहले, अब इसको चेंज कर दिया गया है, यानी मंद बुद्धि। आप लोगों ने देखा होगा कई बार 15-20 साल का बच्चा है, लेकिन वो 2-3 साल के बच्चे की तरह ही व्यवहार कर रहा है, मुँह से थूक निकलता रहता है, ला रहा है, या CPP होता है, वो बच्चे के हाथ वाथ ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाता, धीरे धीरे करके उसकी बॉडी और ज़्यादा खराब होने लगती है। मतलब ये नौबत आ जाती है, उसको उठाकर उसका लैट्रिन पेशाब वगैरह कराना पड़ता है, मतलब फुल्ली डिपेंडेंसी हो जाती है उसकी। अब इसके पीछे की भ्रांति क्या है कि शायद उस बच्चे के पूर्व जन्म के कुछ पाप होंगे, या मेरे कुछ पाप रहे होंगे, या किसी ने कुछ करा दिया होगा, जबकि है नहीं ऐसा कुछ। क्यों हम लोग इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बात करते हैं? सरकार इंसेंटिव भी देती है कि भैया आप अस्पताल में आके डिलीवरी कराओ, सरकारी अस्पताल में, और आपको पैसा भी मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि बच्चे का जो बर्थ है, बर्थ के समय जो दिक्कतें आती हैं, उससे उसको तुरंत निजात दिलाई जा सके। म्यूकस, जो हम लोग आम भाषा में गंदा पानी कहते हैं, जब उसके मुंह में, नाक में चला जाता है, और वो बच्चा जब तुरंत जन्म लेता है और उस समय अगर सांस नहीं ले पाएगा कुछ सेकंड में, तो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, जीवन भर के लिए वो MR हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि अस्पताल में ही जाके आप जन्म पे करवाएं बच्चे। इवन सरकार इसके लिए पैसा भी देती है लाभार्थी। इसके पीछे कोई भ्रांति, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये है इसके पीछे का कारण। बात समझ में आई?
और मैम ने बताया ना, और जो अंधविश्वास, वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि सुसाइडल टेंडेंसी, उसके कुछ सिम्टम, कुछ लक्षण जानिए। बच्चे में व्यवहार बहुत जल्दी आएगा, व्यवहार परिवर्तन होगा उसका, आपको नजर आएगा उसके व्यवहार में, मतलब अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ अजीब अजीब सी बातें करने शुरू कर देगा, कटा कटा रहेगा, अकेले रहेगा, गुमसुम रहेगा, लेट आएगा घर में, बाहर ज़्यादा रहेगा, है ना। और जिसको सुसाइडल टेंडेंसी है उसमें कुछ डायरेक्शन हम लोग देते हैं क्या, कि कभी उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसके पास कोई ऐसी शार्प कट वाली चीज़ नहीं होगी, उसके पास नहीं होना चाहिए कोई रस्सी वगैरह। दूसरा भी हम कुछ बातों से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच रहा है कि नहीं। जैसे कि वो हमेशा बहकी बहकी वो बात करेगा कि अरे यहाँ से कूद जाए तो कितना मज़ा आएगा, पानी में छलांग लगा दे तो एकदम जीवन समाप्त हो जाए। हमेशा ऐसी बातें करेगा कि अच्छा चलो मैं चलता हूँ, किसी पे फ़ोन लगा लेगा किसी के पास कि अच्छा भाई तुम ध्यान रखना अपना अच्छे से, है ना, और घर का सबका अच्छे से ध्यान रखना, और मेरी चिंता फिक्र पर मत करना, ठीक है, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, ये करना वो करना। ऐसा लगेगा कि वो आपसे अलविदा ले रहा है। ये भी एक तरीका है जानने का। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये लक्षण है, इंडिकेट करेंगे हमको उस व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, और आपको वहीं पर सतर्क हो जाना है, आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि कुछ बात हो सकती है। ठीक है, मैं आपको देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, और वो जब मैं बात करूँगा डायरेक्टली सिम्टम बेस्ड, है ना, सिम्टोमेटिक बात करूँगा कि किस लक्षणों के आधार पर बात करूँगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन आप अगर सुनते भी रहेंगे तो भी आपको काफ़ी वो जानकारी वाला हो जाएगा। ठीक है, सेशन जैसे कि बात हो चुकी है हमारी डिप्रेशन पर, सुसाइडल टेंडेंसी पर, थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बात हो गई है ना। मैं अब आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ ओसीडी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, आत्महत्या रैली में काफ़ी है, मैं इसका एक आंकड़ा बताता हूँ WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इसके ऊपर रिसर्च है वो ये बताती है कि हर 40 सेकंड पे कोई एक व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा है ये। हर 40 सेकंड में कोई एक व्यक्ति आत्महत्या कर ले रहा है, और कोई व्यक्ति 20 बार ट्राई करता है तब वो आत्महत्या अपनी कंफर्म कर पाता है। यानी हमारे पास 19 चांस होते हैं उस बच्चे को, उस इंसान को, उस व्यक्ति को बचाने का, है ना। तो क्या करना चाहिए परिवार को? परिवार वाले क्या कर सकते हैं? क्या है, परिवार में परस्पर संवाद बनाए रखें। पहली बात, ऐसे बच्चे आपको व्यवहार से समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि कुछ इतर जा रहे हैं अपने व्यवहार से, कुछ अलग हो रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है और उनसे बात करने की जरूरत है। ठीक है, परिवार में ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं, वो अपनी बातों को खुल के नहीं बताते हैं, खुल के नहीं बात करते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों पे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, घर का कोई सदस्य है गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गुजारिश, ऋतिक रोशन की है, उसमें वो उसकी बॉडी को पूरा पैरालाइज होती है और वो डिमांड करता है सरकार से कि मुझे परमिशन दी जाए कि मैं अपना जीवन समाप्त कर सकूं, क्योंकि वो बीमारी से इतना ज़्यादा पीड़ित रहता है, सफ़र करता है अपने लाइफ में, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा मेरा मर जाना ही ठीक है। तो यानी अगर घर में किसी को गंभीर बीमारी है, नॉन में कोई गंभीर बीमारी वाला है, तो उस पर खास ध्यान रखना है, अन्यथा वो सुसाइड कर सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपने जीवन को समाप्त करने की बात करता है तो नज़दीकी, मैंने बताया, मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलें। और जो व्यक्ति नशा करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है आत्महत्या करने की। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको अलर्ट करेंगी। और क्या है, OCD, मैं बता रहा था OCD का जो स्टार्टिंग फेज है वो टीनेज ही है, यानी किशोरावस्था ही है।
कई पेशेंट आते हैं ऐसे हमारे पास जो बताते हैं। अच्छा, ओसीडी के बारे में कभी किसी ने सुना है? ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन विचार से मतलब है। अगर कोई विचार आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। कंपल्शन मीन्स होता है उस कार्य को करने के लिए हम विवश हो जाए, यानी जब हम उस काम को करने लग जाते हैं तो कंपल्शन होता है। डिसऑर्डर मतलब विकार है, वो मतलब विकार के रूप में हम उसको करने लग जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या ये? इसको हम उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेवजह बार बार हाथ धोता है, अत्यधिक साफ सफाई करता है, इतनी ज़्यादा साफ सफाई करता है कि घर वाले परेशान हैं कि भैया इनको पकड़ो, इनको रोको। इतनी बार हाथ धोते हैं कि उनके हाथ धीरे धीरे छिलने लगे हैं। इतनी बार हाथ धोते हैं कि वो बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन आपको ये अव्यवहारिक लगेगा, एबनॉर्मल लगेगा। दिन में 50 बार हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, डिटर्जेंट से हाथ धोना, बालू, रेत, मोरन से हाथ धोना, पत्थर से रगड़ रगड़ के हाथ धोना, हाथ छिल जाते हैं, खून निकलता है। ऐसे लोग आते हैं और लोग छुपा के रखते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये बीमारी है। बार बार ताला चेक करना, बार बार गैस चेक करना। आप एक बार गए, आपने रेगुलेटर बंद किया, आप निश्चिंत होकर चले आए, लेकिन जिसको ओसीडी है उसको लगा कि अरे नहीं, मैं फिर से जाके चेक करूं, फिर से जाके चेक करूं। ताला लगा के आप निकले हैं, पता चले कि 2 किलोमीटर मार्केट में पहुंच गए हैं आप, वहाँ याद आया कि अरे पता नहीं मैंने ताला लगाया है कि नहीं लगाया, वो वापस, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगा कि ऐसे हिला के देखा मैंने तो कहीं खुल तो नहीं गया। ये आलम होता है किसका? ओसीडी वालों का, है ना। बड़ा अद्भुत सा लग रहा होगा ये, बड़ा बचकाना सा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ लिटरली लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक और है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल ओसीडी कहते हैं। ये तो क्लीनिंग ओसीडी था जो मैंने हाथ धोने वाला बताया। स्पिरिचुअल ओसीडी में क्या होता है? किसी देवी देवता, मंदिर में जाएंगे, मंदिर के आगे से गुजरेंगे, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कहीं भी जाएगा इंसान अगर, और उसको भगवान के लिए बड़े गंदे गंदे थॉट्स आएंगे, मैं वो बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे गंदे गंदे थॉट आएंगे। घर में भाई बहन, माँ बाप के लिए भी गंदे गंदे थॉट आते हैं। वो ऐसा सोचना नहीं चाहता ऐसा इंसान, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी, लेकिन बीमारी के कारण उसको ये सब थॉट्स आते हैं। अब सोचिए ये सब थॉट्स में वो पूरा दिन अगर लिप्त रहेगा तो क्या कोई काम कर पाएगा? वो तो इसी थॉट को बस इससे बचने की कोशिश करेगा, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। उसका जीवन ऐसे नहीं चल रहा होता, उसका जीवन अंदर कहीं चल रहा होता है। जितना हम अपना 50%, 60%, 70%, 100% जिस चीज़ में दे पाते हैं वो शायद 5 to 10% ही दे पाते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि अरे तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा ठीक से, अरे तो मेरी बात नहीं सुन पा रहा ठीक से। कहाँ से सुन पाएगा वो तो अपने आप से लड़ाई कर रहा है, वो तो अपने सर्वाइवल से लड़ाई कर रहा है, वो तो इस बात से लड़ाई कर रहा है कि उसको कोई समझ ले। वो तो इस छोटी सी मनसा में ही उसका जीवन गुजर जा रहा है कि मैं इन सब चीजों से बाहर आ जाऊं, मुझे भी वो चीज एंजॉय कर पाऊं जो मेरा सामने वाला भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त एंजॉय कर पा रहा है। उस चुटकुले पे वो भी हंस पाए जो हम और आप हंस पा रहे हैं। इतना गंभीर विषय है ये, अगर इसको आप जानते हैं तो। इसीलिए मैम ने कहा था कि 1 से 1.5 घंटे का सेशन करते हैं। मैंने कहा 1 से 1.5 घंटे में तो शायद आप लोग सेंसिटाइज ही नहीं हो पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि है क्या मेंटल हेल्थ। हाँ, ऊपर ऊपर सतह से हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं संतुष्ट हो पाता, रियली बताऊं। जहाँ पे सेशन होते हैं, लंबे सेशन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि सतह पे तक ना रह पाए, कोई अंदर तक जाए, समझे एटलीस्ट सामने वाले को। जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे सामने वाले की मनोदशा, हम ऐसे ही हंस के बात करेंगे, ऐसे ही बातों को टाल देंगे और ये भी सोचेंगे कि ये किस तरह का विषय पे बात हो रही है।
मेट्रो सिटीज़ में, इवन बाहर विदेशों में इसके लिए काउंसलिंग के लिए 10-10, 15-15 दिन का वेटिंग होती है कि सिर्फ बात करने को मिल जाए, काउंसलिंग सेशन करने को मिल जाए। साइकेट्रिस्ट की तो दूर की बात है। और हम लोग अपना जीवन ऐसे ही बिताए जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा पीछे होके देखिए, पीछे अपने जीवन में झांक के देखिए। जब आप 15 साल, 12 साल, 20 साल के थे तो आपके जीवन में जो खुशी का एक ग्राफ था, एक खुशी का जो पैमाना था वो कितना था? उस पैमाने को अगर हम 100 नंबर दें तो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे क्या वो पैमाना अभी भी उतना ही है, 100 नंबर है? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो पैमाना डेफिनेटली 50 से 60% पे आ गया होगा। तो खुशी आप महसूस ही नहीं कर पाते होंगे। आपको जानकारी नहीं है कि क्यों हो रहा है आपके साथ, किस स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, किस एंजाइटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग उस जीवन को अपना चुके हैं, मान चुके हैं कि अरे ये तो जीवन ही है, ऐसा नहीं जानते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को तवज्जो भी नहीं देते, इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। किसी भी कि आप लोगों ने क्या कभी कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स किया? क्या आप लोगों ने कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात की? क्या होती है, क्या भला है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट? क्या होता है एंगर मैनेजमेंट? नहीं पता है लोगों को। गुस्सा करते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, किसी को मार दिया, किसी को शार्प चीज मार दी, किसी को शार्प चीज मार दी, खोपड़ी खुल गई उसकी, बाद में पछताते हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि भाई वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कत है, बात करने की जरूरत है। लेकिन हम इसकी बजाय ऐसे जीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, रहना पसंद कर रहे हैं। स्माइल, खुशी के साथ नहीं, दुख, सैडनेस के साथ। ठीक है मैम? ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। देखिए डिसऑर्डर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, है ना, गूगल भी कर लेंगे आप लोग। लेकिन जो एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए ना, आप में एक संवेदना होनी चाहिए। मैं उस संवेदना को जगाने का यहाँ ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश भी यही कर रहा था। और होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चली होंगी, है ना, और कुछ लक्षण भी जाने होंगे। सिर्फ पागल होना ही मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये जो तमाम लक्षणों पे आज बात हुई है, बहुत सारी चीज़ें, ADHD है ना, कंडक्ट डिसऑर्डर है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बना के आया था। ऑटिज्म है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, माइग्रेन है ना, एपिलेप्सी है। इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं पूरा दिन बोलूँगा तब भी शायद मैं मेंटल डिसऑर्डर को नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा। लेकिन हम लोग की धारणा सिर्फ एक जगह टिकी हुई है, वो जो पागल सामने दिख रहा है बस वही है। और कोई अगर मेंटल डिसऑर्डर की यानी साइकेट्रिक के पास कोई चला गया तो इसका दिमाग खराब है, बस ये हम लोगों की धारणा है। तो इन सब धारणाओं से बाहर आइए। किसी को गुस्सा, स्ट्रेस की वजह से भी जा सकता है और बात कर सकता है, काउंसलिंग ले सकता है। इसमें क्या हमारी क्यों हम सोच बनाए कि भाई ये पागल ही हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, है ना। आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, इतना आप लोगों ने धैर्य से सुना, पेशेंसली सुना। मैम ने इनवाइट किया, मैम को थैंक यू। प्रिंसिपल सर ने टाइम दिया, यहाँ पे आप लोगों ने सुना। और एक जो कंट्राडिक्ट है ना बच्चों और आप में, अब उसको थोड़ा सा पेशेंसली थोड़ा सा बैठ के सोचिएगा कि क्यों हो रहा है ऐसे। जब हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे प्रश्न ना अपने आप धरे के धरे रह जाते हैं और हमको वहीं से ही जवाब मिल जाता है। और फिर हम बैलेंस यानी संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं अपने और बच्चे के व्यवहार में, और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये छोटी सी एडवाइस के साथ मैं आपकी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कंक्लूड करने के लिए मैं थोड़ा सा 2 लाइन आप लोगों को बोलूँगी। इतने सारे डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों ने सुना, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे आप लोगों ने हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सुना है, वायरल फीवर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, कोविड है। कोविड के भी बहुत सारे लक्षण जान गए आप लोग। जैसे आप लोग लक्षण जानते जाते हैं वैसे ही आप अपना बचाव करते जाते हैं। पक्का? बस इतना ही प्रयास है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लक्षण आपको जानने की ज़रूरत है, संवेदनशील होने की ज़रूरत है। मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम जब हर साल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं
और कोई भी डे जब मनाया जाता है तो ये हम सबको पता है कि जरूर इस बात की क्राइसिस हो चुकी है, कमी हो चुकी है और हमें अब इसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आप सभी अपने बच्चों के छोटे छोटे व्यवहारों पे नज़र रखिए। कोई भी परेशानी होती है तो उससे बात करने में बिल्कुल झिझक मत करिए, चाहे क्यों ना हो आपको लग रहा हो कि इसकी चिंता से, इसके व्यवहार से रिलेटेड है। कभी भी व्यवहारिक और बदमाशी है ऐसा करके इग्नोर मत करिए। और जैसा कि सर ने बताया और आप लोगों के बीच में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमारे मेहमान उपस्थित हैं, वहाँ पे आपको मुफ्त सलाह भी दिया जाता है। वहाँ पे मनकक्ष 49 रूम नंबर एंड 50 रेफरेंस के लिए और रेफर के लिए मैं ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी सदर अस्पताल में, जिसको हम लोग जानते हैं, वहाँ पर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 8 से 2 बजे तक हम लोगों की वहाँ ओपीडी रहती है, ठीक है। और जो नियर बाई CSCPSCs होते हैं वहाँ पर हम अल्टरनेट डे पे भी रहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ दिखा सकते हैं। साथ ही एक हम लोग का मन कक्ष, जिसको हम लोग काउंसलिंग सेंटर कहते हैं, हमारे यहाँ का है। तो वहाँ पर जैसे आप लोग अगर व्यवहार में कुछ समस्या लग रही है तो आप काउंसलिंग के लिए आइए और भेजिए। तो वो हमारा काम है ना, तय करना कि किसी को मेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं है। उसके स्पेशलिस्ट जब वहाँ बैठे हुए हैं तो आपको पहले से सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये इसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। बस आपको इतना कर देना है कि आपको वहाँ भेज देना है। और जो आपको लिफलेट मिला है उस पर वैसे तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एड्रेस भी लिखा हुआ है और वो हेल्पलाइन नंबर भी लिखा हुआ है। साथ ही मैं ये बता दूँ, एक टेलीमानस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम 10 अक्टूबर 2002 में शुरू हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है, जो हमारे PM साहब हैं उनका विज़न था कि हम डिजिटली भी मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इनबिल्ड करें इसको कि लोगों को घर घर तक इसकी सुविधा मिले। डिप्रेशन और तमाम चीज़ों को लेकर, सुसाइडल टेंडेंसी को लेकर, एंजाइटी, स्ट्रेस को लेकर, है ना। तो एक उसका भी नंबर है 14416, IVR नंबर है, IVR सिस्टम है। मैं अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, 14416 यानी 14416। मैं मैम को बता दूंगा, मैम आप बच्चों को बता देंगे, फिर वहीं से वो सर्कुलेट भी हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये सर्विस है जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। होप आप लोग ज़रूर आइए और हेजिटेट नहीं करेंगे। तो ये अवेयरनेस इसलिए कि गोरखपुर में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपके स्कूल में काउंसलर हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, हर कोई आपके बच्चे से बहुत प्यार से बात करता है। आप कभी भी इस बात के लिए झिझक मत करिए कि मैं संभाल लूँगा और ऐसा कुछ नहीं है। इग्नोर नहीं करना है, आना है, मिलना है। आप जिससे भी सहूलियत महसूस करते हैं उससे बात करिए, लेकिन बात करिए। ये लाइन मैं जरूर छोड़ूंगी कि स्पीक अप हम लोग कहते हैं कि बोलो, बच्चों को सिखाते हैं, कहते हैं बोलो, मतलब आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है। आप जिस भी तरीके से आप बोल सकते हैं बोलिए। और मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आपसे एक जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। मैं आपसे एक प्रॉमिस करवाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, अभी तक हम इतने थे, अब हमारे पास इतने हैं और इससे डबल और ट्रिपल होने चाहिए। आप जिससे भी मिलेंगे आप इन चीज़ों की जानकारी जरूर बांटेंगे। अपने से 2 लोग, कम से कम ये प्रॉमिस करिए कि 2 लोगों को जरूर मैं अवेयर करूँगा कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। तभी शायद हम लोग आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं और अपने देश को भी बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को 2 मिनट थोड़ा सा और यहाँ रुकना होगा और हम लोग थोड़ी फॉर्मेलिटी करेंगे, इसके बाद आपसे विदा लेंगे। Thank you, Sanjeev sir. Thank you, Lakshmi Sharma ma'am. And thank you, dear parents, for being such a patient audience. Now I request respected Vice Principal sir to say a few words about today's session. आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर संजीव सिंह जी, डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा जी, सम्मानित अभिभावक
एवं प्यारे शिक्षक, आप सभी को आर्मी स्कूल परिवार की तरफ से मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम के बारे में जब बताया गया तो इसमें प्रतिभाग करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उस समय हल्की फुल्की बारिश की भी परवाह किए बिना भी स्कूल में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो जानने और समझने का प्रयास किया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद निश्चय ही मेंटल हेल्थ के बारे में जो उसके फीचर्स है, लक्षण है, कैसे उसका बचाव किया जा सकता है, कैसे हम अपने खुद को, कैसे हम अपने बच्चों को, किस तरह से हम अपने परिवार को उससे हम उबार सकते हैं, इन सारी विधाओं को समझकर, जानकर आप निश्चित ही समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम सबके साथ केंद्रित है, वो हमारे छात्रों की। आज हमारे साथ जो अभिभावक बैठे हुए हैं वो सर कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के अभिभावक बैठे हुए हैं और वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी कुछ अधिक ही बढ़ जाती है, क्योंकि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र उस समय उनका मानसिक और शारीरिक परिवर्तन में त्वरित विकास होता है, जिस विकास और परिवर्तन को कभी कभार हम समझने में असमर्थ होते हैं और उस असमर्थता का समय हमें ये भी समझ में नहीं आता क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर पाए, और कभी कभी उस समय हम हताशा के शिकार हो जाते हैं, अपनी अंदर ही कुढ़ते रहते हैं, अपनी परेशानी को लेके जीते रहते हैं और उससे परेशानी को किसी से शेयर करने में भी बचते हैं कि इससे हमारी कहीं बदनामी न हो जाए, हमारे बच्चे के बारे में कोई गलत धारणा न बना ले, हमारे परिवार के बारे में कोई गलत न सोच ले, और उसको छुपाने के प्रयास में हम कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि हमारे परिवार या हमारे समाज की हानि भी हो सकती है। इसलिए हमें उससे बचने के लिए हमारे जो आज एक्सपर्ट आए हुए थे, उन्होंने जो भी हमें बताए, चाहे वो उस तरह की बीमारी अगर हमें लग रही है कि हम उससे ग्रसित हो रहे हैं, हमारा बच्चा उससे ग्रसित हो रहा है, हमारे परिवार का कोई सदस्य ग्रसित हो रहा है, या हमारे समाज का कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे इस तरह की परेशानी को शेयर कर रहा है, तो निश्चय ही हमें उसके बारे में बताए कि यह एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुलभ है, जो आप सदर हॉस्पिटल में जाकर के करा सकते हैं। साथ ही इसमें किसी बाबा की, दुआ की या फिर किसी और अलग तरह के इलाज की जरूरत नहीं है, जिसमें जो व्यक्ति या जो पेशेंट है एक अलग तरह के ही रोग का बीमार है, उसको आप किसी बाबा के पास ले गए, किसी झाड़ फूंक करने के पास ले गए और उसने उस बीमारी को और बढ़ा दिया, तो आप कहते हैं नहीं, ये बाबा उतना काबिल नहीं था, अब इसके बड़े वाले बाबा, गुरु बाबा के पास ले सकते हैं और वहाँ पे उसका इलाज हो जाए, क्योंकि उन्होंने उनका इलाज किया था। पता चला इस झाड़ फूंक के चक्कर में आपने उस व्यक्ति विशेष के जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और कहीं आप समय रहते हुए सोचते या जान पाते तो शायद उसका अच्छी जगह पे इलाज कराते और वो व्यक्ति निश्चित ही मेंटल रूप से स्वस्थ होता और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर पाता। तो इसलिए हम एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करते। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ बच्चों में। एक हमारे स्कूल में बच्ची है, क्लास 1 की छात्रा है। आप लोगों के हमारे व्यवहार का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। उस बच्चे के माता पिता को वैष्णो देवी जाना था और बच्ची स्कूल सुबह, उस बच्ची को पता चल गया कि मम्मी पापा वैष्णो देवी जाएंगे, तो वो भी वैष्णो देवी जाने के लिए हट करने लगी। माता पिता ने कहा नहीं बेटा, घर में आंटी हैं, भैया है, आप उसके साथ स्कूल जाना, हम 1 हफ्ते में 5 दिन में लौट के वापस आ जाएंगे। बच्ची नहीं मानी। माता पिता ने कहा अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, तुम स्कूल से आओ तब हम जाएंगे। जब वो बच्ची स्कूल चली गई, माता पिता जी वैष्णो देवी चले गए। जब बच्ची स्कूल से घर वापस पहुंची और माँ बाप को घर में नहीं देखा, उसके दिमाग पे इतना आघात पहुंचा कि जब वो वैष्णो देवी से वापस आए तो बच्ची स्कूल में रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी, मतलब अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी नहीं मुझे घर जाना है, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर फिर मैं स्कूल चली आई तो मम्मी पापा फिर मुझे छोड़ के कहीं चले जाएंगे। और इस व्यवहार परिवर्तन करने के लिए हमारी लक्ष्मी शर्मा मैम ने, माधवी मैम ने, हम लोगों ने इतना प्रयास किया और ये शायद
शुरुआती के दिनों में इतना कठिन लग रहा था कि हम लोग इससे कैसे उभरे और उस बच्ची को पुनः हम क्लास में कैसे बिठाएं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास रंग लाई और लक्ष्मी शर्मा मैम ने विशेष कर से उस बच्ची के साथ इस तरह से बिहेवियरल चेंज लाया कि वो बच्ची क्लास में बैठने लगी है और अपनी माँ को कुछ घंटे के लिए, वो भी पूरे समय के लिए नहीं, कुछ घंटे के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। अब आप सोचें कि किस तरह से हमारा आपका व्यवहार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालता है और उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। पुनः मैं सर आपको और दोनों लोगों को मन की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सेशन के संदर्भ में जितनी भी बातें आपने हमारे अभिभावकों को बताई, निसंदेह ये बातें इतनी महत्वपूर्ण थी इस परिवेश में जानने की कि जो ये हमारे अभिभावक अपने बच्चों को, अपने परिवार को जाके बताएंगे और इस तरह की कहीं भी उनको कोई छोटी बड़ी परेशानी महसूस होगी या हो रही होगी तो निश्चित ही उस परेशानी को दूर करने का हम सबके माध्यम से, आपके माध्यम से प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम आपको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Now proceeding to the conclusion of today's session, I request Vice Principal Sir and our school councillors to present a token of gratitude to our guest speaker, Dr. Sanjeev Kumar Sir. So please accept this token from our school and from the behalf of parents. Your session has been really such an enlightening session, and we wish to listen more in future from you. एक बार मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे काउंसिलर लक्ष्मी शर्मा मैम और माधवी मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया और इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का और इसे आगे बढ़ाने का श्रेय उन दोनों को ही जाता है। तो ये बात में मेरे तरफ से, इस टीम की तरफ से लोगों को धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी पेरेंट्स से कि आप सभी थोड़ा नीचे ऐसे सेटअप होइए और हम रिसोर्स पर्सन हमारे जो गेस्ट हैं सर हैं उनके साथ फोटो क्लिक करें। सर मैम आप लोग ऊपर हो जाए सर, लोग ऊपर हो जाए। नहीं, इसके लिए माफी लेगी, नीचे नहीं, आप लोग बराबर हैं, आप लोग
क्या चीज का उसमें हम लोग चेक हो जाएंगे इससे सबका चेहरा है